So Hess's law. Hess's law, also commonly known as the second law of uh, Hess's law, is known as second law of thermodynamics, right? So you're gonna get a few parts of it in physics. हमारे पास chemistry में भी कुछ हिस्सा है. Let's stick to what we have in chemistry. So conserving energy. The law of conservation of energy states that we cannot create energy, we cannot destroy energy, we can only convert from one form of it to another form of it. Okay? So that was the law of conservation of energy, and this is also the first law of thermodynamics. Okay? So first law of thermodynamics chemical reactions पे भी apply होता है. Total energy chemicals की उनके surroundings की constant रहती है. 1814 में जर्मेन हेस ने first time law of conservation of energy को apply किया था enthalpy changes के लिए. Hess's law, which is also known as the second law of thermodynamics, ठीक है, and this has been a pretty important question back in 2010 to 2014, but after 2014 we have saw it pretty seldom. ठीक है, तो अभी के लिए चूंकि बुक में चीज नहीं लिखी हुई इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, पास्ट पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन we have seen Cambridge with A-level papers that they tend to repeat their questions after 10 to 15 years, so the repetition is not quick in terms of specifically the theory paper. Paper 2 के लिए बात हो रही है. ठीक है, so इसलिए हम कुछ पुरानी चीजें भी साथ साथ डिस्कस करते हैं. ठीक है, coming on to the Hess's law, actually, the total enthalpy change in the chemical reaction is independent of the route by which the chemical reaction takes place, as long as the initial and final conditions are same. So, what do they exactly mean from this? Okay. So, states of reactants and products हमेशा same रहनी चाहिए जो भी route हमारे पास follow होता है. Alright. So, हमारे पास enthalpy change किसी भी reaction के लिए, ठीक है, independent होता है for the route. Now, what happens? Let's consider an example of A plus B being converted into C by a direct route. We may take the reaction with indirect route. Let's say हमारे पास indirect route 1 है, ये है कि वो F plus G में convert होते हैं, then they are converted into C. Indirect route number 2 ये है हमारे पास कि वो X में converted होते हैं, then they are converted into Y plus C, and then they're converted into C. So if the initial conditions and the final conditions are same, right? Reactants for products के state same हैं, so it does not matter कि आप ये direct route लेते हैं, आप ये indirect route 1 लेते हैं, आप indirect route 2 लेते हैं, ठीक है? It won't matter. आपके पास enthalpy cycles, enthalpy changes जो होंगे, वो total enthalpy change from this to this reaction, no matter which the route, will remain the same. Let me explain by giving you an example before we go on with the actual example of the book. You know pretty well when carbon reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. But at the same time, you know, if we have limited amount of oxygen, the result is different and it produces carbon monoxide. You also happen to know that if we can convert carbon into carbon monoxide, we can further add some oxygen to finally oxidize it to carbon dioxide. So you can call it a direct route. You can call this one an indirect route. So इसके जितने total enthalpy changes होंगे, delta H की total value आएगी, इस सारे reaction के लिए भी वही value आएगी, although we have done it in a few different steps. हमारे पास जो A plus B था, पहले वो F plus G में convert हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो CO2 में finally C में convert हुआ. ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज को भी कोट कर सकते हैं. Alright, so we're going to follow a same example to show you how the enthalpy changes remain the same, but provided there is a big if कि initial और final conditions same रहेंगे. ठीक है, so यही चीज जो मैंने ऊपर बताई उसने यहाँ पर भी बताई हुई है. If there are a few things, that we need to note. Hess's law हमें ये बताता है कि enthalpy changes direct route के same होते हैं. Indirect route के लिए कितने steps हैं indirect route में ये matter नहीं करते. You might have seen that we have used 1 or 2 steps, ठीक है, in between. लेकिन अगर इससे ज्यादा भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. 1, 2. We can use Hess's law to calculate enthalpy changes that cannot be found by experiments using calorimetry. ठीक है, ये specific बहुत important बात है. ठीक है, कि Hess's law को हम use कहाँ करते हैं. Now, as a twist that I was just saying कि हम इसे second law of thermodynamics भी कहते हैं, तो कहाँ पर second law of thermodynamics use होता है, इस स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट अमूमन कंफ्यूज हो जाता है. So actually this is the same way of saying where do we use the Hess's law or where do we use the second law of thermodynamics. Coming back to it, आपको पता होगा कि enthalpy changes हमने न्यूट्रलाइजेशन की, combustion की, कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट की हैं,
लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते। क्यों? हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता कार्बन के साथ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और वो फिर प्रोपेन फॉर्म नहीं करता। ठीक है, सो या वी मे बी एबल टू रिएक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म मेथेन। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है वो प्रोपेन करें। सो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास हेसेस लॉ जो है वो मस्ट हो जाता है एंथैल्पी चेंजेस के लिए। ठीक है, सिंस आप उन्हें डायरेक्टली या एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिकली कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। Though we don't have more examples in the book, you won't need the more examples as well. We're drawing a boundary line over here. तो बहुत ज्यादा केसेस आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। If you're gonna take a look at the past 10 years papers, you'd notice कि ये चीज इसी तरह से है। That's why I draw a line. Okay? So हमें एनर्जी साइकिल हो सकता है ड्रॉप करना पड़े। ये एक और तरीका होता है एंथैल्पी साइकिल को या हेस साइकिल को एक्सप्लेन करने का। एनर्जी साइकिल के लिए हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स होती हैं, हम उन्हें किस तरह से शो करते हैं वो बताने जा रहे हैं। जो डायग्राम अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डायग्राम्स कॉमनली आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं। So I'm going to explain a couple of methods, and you then may be able to pick the one that you like. However, I tend to go with the easiest one, okay, and one that has been followed by the book. All right. So moving on, enthalpy cycle या energy cycle, enthalpy change of reaction को calculate करने के लिए होता है। ठीक है, specifically वो जो हमारे पास कैलोरीमेट्री से नहीं हो रहे। ठीक, आप इसमें नोटिस करेंगे कि हमारे पास मेथड यही रहेगा। वी ड्रॉ अ बॉक्स एट बॉटम, वी ड्रॉ टू बॉक्सेस ऑन टॉप। ठीक है, एक बॉक्स में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एक बॉक्स में रिएक्टेंट्स होते हैं, एक बॉक्स में प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगा और आपको इनडायरेक्ट रिएक्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है हम एलिमेंट्स को पहले रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करें और फिर उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, और फिर हम एलिमेंट्स को प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, इसको मैं डायरेक्ट रिएक्शन क्यों कह रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चंस में ये वो रिएक्शन होता है जिसके ऊपर हम वर्क अपॉन कर रहे होते हैं। ऑल्दो इन आवर केस दिस इज नॉट द डायरेक्ट रिएक्शन, दिस वन इज। ठीक है, एलिमेंट्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना एक सिंगल डायरेक्ट स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, हाउएवर हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या है कि एलिमेंट्स पहले रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स बाद में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। Now you'd notice that we have delta HR, standard enthalpy change of reaction. आपको standard sign नहीं नजर आ रहा, so we can safely say ये enthalpy change of reaction है। ठीक है, हमारे पास delta H1 और H2 हमने नोट किए हुए हैं। Since these can be different kinds of reactions, elements को reactant या product में change करना, they might turn up into different kinds of reaction. It can be formation, it can be combustion, it can be other kinds of reactions. So we're not specifying it, and we're simply stating them with as 1 and 2. Now this might seem a little difficult, लेकिन हम इन्हें जब examples के साथ करते हैं, this would make a lot more sense. So let me come up with an example first. Enthalpy change of reaction from enthalpy changes of formation. Now, since there can be many kinds of reactions, so what the book is about to do is to use different kinds of reactions for different examples. So we are starting off with the most easiest of examples. हमने enthalpy change of reaction find out करना है। ठीक है, और वो हमने करना है enthalpy change of formation से, which means कि हम ये वाली चीज करें और इनमें से कोई ना कोई एक जो होगा, या हो सकता है दोनों भी हों, वो enthalpy change of formation के reactions होंगे। ठीक, अब ये बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं? ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं that as soon as you read a question in exams, you can actually sort out the question into the type of stuff that we are about to study. हम different types पढ़ते जाएंगे तो फिर होता जाएगा। मसलन देखें, आपके सामने एग्जाम में एक रिएक्शन लिखा होता है A plus B is converted into C plus D, और फिर आपके पास उसके साथ उसकी डेल्टा H की वैल्यू दी होती है। लेट्स सपोज वो नेगेटिव में कोई वैल्यू दी हुई है इनटू किलो जूल पर मोल। ना, जैसे ही हमने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन हीट, हमने आपको दो टाइप्स बताई। We told you it is bifurcated into exothermic and endothermic. ठीक है, you knew कि exothermic कौन सी टाइप होती है, endothermic कौन सी टाइप होती है। I'm not going to go in detail, but the thing I'm talking about over here is हमने आपको hints भी बताई होती हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, आप उसी वक्त अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बेस्ड अपॉन हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। राइट?
तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम आपको हिंट्स देते हैं कि जब आप क्वेश्चंस इक्वेशंस देखें तो आपको पता चल जाए कि आप इस वक्त किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, यही एक डिटेक्शन टेक्निक है। इट्स नॉट जस्ट द हेडिंग, ये आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन की टाइप बताएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप मेरे साथ इसे सॉल्व करते जाएंगे और टाइप्स पढ़ते जाएंगे, इट वुड बी इजियर फॉर यू to sort the question out as soon as you read it up, ठीक है, in the first 2 or 3 lines कि ये इस type का question है, and now I am mentally prepared to solve this question like the way it is supposed to be, ठीक है। तो उसके लिए बात हो रही है। It's a little earlier to say this, but I'm gonna use the same reference as soon as I'm done with the whole heading, enthalpy change of reactions from enthalpy changes of formation. So let's actually step right into it. हम समझते हैं ये है क्या। हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। हम नोट करेंगे डायरेक्शन ऑफ एरोज सिंगल स्टेज या डायरेक्ट रिएक्शन के लिए, और इनडायरेक्ट रूट्स यानी कि टू स्टेज रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हम हेसेस लॉ को कैसे इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अब ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। लेट मी क्लैरिफाई दैट अगेन कि आपके पास ये जो एरो है रेड वाला, ये बड़े अच्छे तरीके से ये बताता है कि दिस स्टेप प्लस दिस स्टेप इज द इनडायरेक्ट रूट, ये आपके पास इनडायरेक्ट है। एंड दिस सिंगल स्टेप टेल्स यू के एलिमेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये आपके पास डायरेक्ट स्टेप रूट है, ठीक। तो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। As per Hess's law, which we have stated above, your delta H values for direct is actually equal to the delta H value of indirect, provided आपके पास initial और final condition same हो। So that means कि delta H2 की value equal होगी actually the sum of delta H1 and delta HR, ठीक है। And the same thing is written on the next page. So I'm going to move to the next page, and you'll find the direct root enthalpy is actually equal to the sum of the indirect root steps. आप उन steps का sum करते हैं, and you find that the enthalpy changes are equal. But that's not our concern. Our concern is to rearrange the equation in order to find the delta HR. इसी वजह से मैं ये बात कर रहा था, will be most probably interested in the reactions of reactants to products, since delta HR की value इसके लिए करना क्या है, एक्चुअली स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर आपके पास जरूर होनी चाहिए। साइकिल को ड्रॉ करें एलिमेंट्स के साथ एट द बॉटम, ड्रॉ करें तमाम एरोज जो आपको चाहिए इस पर्पस के लिए, ठीक है। और मेक श्योर करें कि एरोज करेक्ट डायरेक्शंस में जाते हो। हेसेस लॉ अप्लाई करें, अकाउंट करें नंबर ऑफ मोल्स हर रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स से एक प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं, 3 CO2 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को भी 3 से। याद रखिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एक एलिमेंट की अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होती है, ठीक है। कुछ चीजें हमने बता दी। It's actually a lot of information to process at the same time. So let's start with worked examples ताकि आपको बात की ज्यादा अच्छी सेंस समझ आए, ठीक है। Worked examples are gonna get you more clearer to what we are about to do, ठीक। हमारे पास sodium hydrogen carbonate, baking soda that we commonly use to bake stuffs like pizzas, cakes and all of that, ठीक है। हम उसे जब हीट अप करते हैं कुकिंग के दौरान, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से केक्स राइज अप करते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, पास्तास एंड ऑल दैट, ठीक है। और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो हमारे पास हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मेशन रिएक्शंस जो हैं, अगर हम एलिमेंट से ये प्रोड्यूस करें या ये प्रोड्यूस करें या ये प्रोड्यूस करें या ये प्रोड्यूस करें, तो उसकी वैल्यूज ये बनती हैं, विच मीन्स कि आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, तो आपको ये एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगी। सो डोंट यू वरी, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो इस तरह के क्वेश्चन में चाहिए होगी, वो आपसे क्रैम नहीं करवाई जाती, वो यूजुअली आपको गिवन होती है। However, please note, I would certainly suggest you to memorize these two values, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको याद होंगे, the more you can remember it, the faster you're going to solve your questions, because most of the questions will talk about this. I'm not just talking about paper 2, I'm talking about paper 1 as well. Okay? So try remembering this value for water and try remembering this value for carbon dioxide.
ठीक है। सो हमें फॉर्मेशन वैल्यूज उसने पहले बता दी। इंफॉर्मेशन वैल्यूज का मतलब क्या है? शुरू करते हैं बॉटम से। आपको याद होगा कि बॉटम पे क्या थे? एलिमेंट्स। और कोशिश करें हर मर्तबा इसी तरह बनाएं। बुक इसे रोटेट करते रहेगी, बेशक रोटेट ना करें, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन वी गो अ लिटिल फर्दर। इस तरफ हमेशा रिएक्टेंट्स रखें, इस तरफ हमेशा प्रोडक्ट्स रखें, ठीक। राइट। मैं समटाइम्स स्टूडेंट्स को फॉर देयर स्टार्ट ये भी कहता हूं कि नीचे जो आपने बॉक्स ड्रॉ करना है उसके एक साइड पे ई, इसके एक साइड पे आर और इसके एक साइड पे बेशक पी लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। E स्टैंड फॉर एलिमेंट्स, R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट्स, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स। अगर ये आपके एक्चुअल पेपर में भी होंगी तो भी इसे कोई कट आउट नहीं करेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं कट होते हैं। बट इट्स एक्चुअली अ बिगिनर स्टेप, इट्स अ बेबी स्टेप। The sooner you're going to get a hold of it, you can stop doing it. All right? So, moving on, elements क्या हैं? Since हमने सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को इन तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में देखा है, तो हम इन्हें इनकी एलिमेंटल स्टेट में लेंगे। रूम टेम्परेचर पर सोडियम सॉलिड स्टेट में, कार्बन को हम हमेशा ग्रेफाइट की स्टेट में लिया करेंगे, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेक श्योर आप ये सारा कुछ ऐसे लिखें, ठीक है ना। यूड आस्क के सर ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, ये नंबर्स हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। नॉट टू फॉरगेट कि आप यहाँ पर इन्हें बैलेंस कर चुके हुए हैं, सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आपके पास Na यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, H यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, so on and so forth. Carbon P2 है on both sides and oxygen is 6 on both sides, ठीक है। तो you'd notice that the same numbers over left and right हमने वही यहाँ पर भी यूज किए हुए हैं। That's why the balanced chemical equation at the very start of the process, ठीक है। तो आप नंबर्स पुट अप कर सकते हैं। अगर आपने नंबर्स शुरू में पुट अप नहीं करने, क्वेश्चन स्लाइटली कंफ्यूजिंग है, यस यू स्टिल नीड टू बैलेंस, सो मेक श्योर कि आप इन्हें मेंशन कर दें और इनके लेफ्ट पर थोड़ी सी जगह अपने लिए ओपन रखें ताकि आप वहां पर नंबर्स लिख सकें। आई सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट। उन्हें लिखा Na, उसके बाद सॉलिड लिखा, उसके बाद प्लस लिख के यूं कार्बन लिख दिया। फिर यहाँ जगह नहीं बचती तो पहले 3 लिख देते हैं, फिर एक आधी गलती करते हैं तो इसके ऊपर भी चीटे मीटे मारते हैं और फिर यहाँ 2 और यहाँ प्लस। देयर यू गो, यू हैव ऑलरेडी ruined your paper with cutting and overwriting. Don't do that, ठीक है। आप बहुत पहले से केमिस्ट्री और इक्वेशंस को हैंडल करते आ रहे हैं। यू ऑलरेडी नो कि जब भी हम कोई स्पीसी मेंशन करते हैं उसकी मोलर या बैलेंसिंग फिगर्स उसके लेफ्ट पे आती हैं। तो हर स्पीसी के लेफ्ट पे 1 या 2 नंबर लिखने की अगर आप जगह छोड़ देंगे शुरू में ही, ये कल ए लेवल में स्टार्ट में करना शुरू कर देंगे एंड मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट, it is going to be pretty good for you since your papers are going to be neater that way. All right? An important piece of detail that I don't think you should miss. कि सो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दें, आगे चलें। हमारे पास इस केस में रिएक्टेंट क्या है वो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है। हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट्स क्या हैं वो भी उसने हमें क्वेश्चंस में बता दिए। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमने वैसे वैसे लिख दिए। इक्वेशन बैलेंस हुई थी यहाँ पर और यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स तीसरे स्टेप में यहाँ पर नंबर्स पुट अप करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ आ जाता हो। अब हमारा सेकंड स्टेप ये था कि हम इनको मेंशन करने के बाद, ठीक है, इनके एरोज पुट अप कर लेंगे। याद रखिए एलिमेंट्स से ही रिएक्टेंट्स भी बनते हैं और एलिमेंट्स से ही प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो ये दोनों एरोज यूं ही रहेंगे। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये एरोज भी यूं ही रहेंगे। जैसे ही आप एरोज मेंशन करें उसके साथ ही एरोज को उनके नेम से लेबल कर लें। डेल्टा H1 इसे डेल्टा H2 और यहाँ पर डेल्टा HR। आर इसलिए कि ये वो रिएक्शन है जिसके ऊपर हम वर्क ऑन कर रहे हैं। वंस और टूज इसलिए क्योंकि हमें नंबर करने होते हैं, जो भी हमारे इसके आर के अलावा जो भी स्टेप्स होंगे उन्हें हम नंबर ही करते हैं, ठीक। अब एलिमेंट से अगर NaHCO3 बनता है तो ये एक्चुअली फॉर्मेशन है ऑफ NaHCO3 और उसको यूज करने के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। He already knew that you're supposed to use this value, so he gave you this value. Now, if you look at the equation that you have, unfortunately, you'll be using 2 of these, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग नंबर भी वही डालने पड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 डालना पड़ेगा। और हमने अभी अभी इस वर्क एग्जाम्पल से बिल्कुल पहले लास्ट लाइन में बात की
कि आपको मोलर नंबर्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर पे यूज करने पड़ते हैं, तो आप जो भी फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फॉर NaHCO3 उससे पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये पर मोल वैल्यू भी गिवन है, आपको उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है सिंस यू आर फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये किसी के साथ भी रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, किसी के साथ भी हो, हमें ये वैल्यू यूज करना होती है। ठीक है, उन्हीं एलिमेंट से हम प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली बना सकते हैं, इट्स अ डायरेक्ट स्टेप। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन या वाटर की फॉर्मेशन के लिए भी हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन चाहिए होगा। सिंस वी नीडेड दोज, उसने वो पहले से हमारे पास मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास Na2CO3 या CO2 या H2O, ये सारा कुछ यहाँ पे उसी तरतीब से गिवन है, वो हमने यहाँ पर तीनों मेंशन कर दिए। रिमेंबर, ये डायरेक्ट स्टेप है, तो हमारे पास ये स्टेप 3 प्रोडक्ट्स पे आ रहा है, तो हमें तीनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू को एड अप करना पड़ेगा। सो प्लस प्लस प्लस। रिमेंबर, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके मोलर नंबर्स 1 1 और 1 हैं, तो हमने यहाँ पर वही वंस देखे। सो हमने इनमें से किसी के ऊपर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं यूज किया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक, ओके, ये वैल्यूज भी हमारे पास हैं, ये वैल्यूज भी हमारे पास हैं। यू ऑलरेडी न्यू कि डायरेक्ट स्टेप जो होता है वो डेल्टा H2 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा HR एंड डेल्टा H1। ठीक है, तो हमारे पास अगर डेल्टा HR की वैल्यू लेनी है, सो दैट इज द इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप and then the indirect steps subtracted from it. ठीक है, तो डेल्टा H2 क्या है? इट्स एक्चुअली एन एडिशन ऑफ ऑल थ्री। डेल्टा H1 क्या है? ये एक वैल्यू है। इन सारी वैल्यूज को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना ना द ट्रिकी पार्ट ओवर हियर, delta H2 is actually a sum of delta HF of this and this, all of which are in negative। तो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू प्लस फिर एक और नेगेटिव वैल्यू प्लस फिर एक और नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये 3 है, फिर माइनस, फिर इसके अंदर फिर आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिंस यू आर डीलिंग विद टू मेनी नेगेटिव्स, यूज द प्रॉपर ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स, जो भी आपको यूज करनी है प्रॉपरली यूज करें। मेक श्योर के जब आपने सारा कुछ करेक्ट कर लिया है तो एक सिंपल मैथमेटिकल साइन मिस्टेक ना करें। ठीक है, सिंस यू कैन रूइन एवरीथिंग विद अ स्मॉल साइन मिस्टेक, सो इसे ध्यान से करना है। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस वाली बातें बहुत सारी जगहों पे आएंगी एंड यू नोटिस के वो करना हमारे लिए जरूरी है। सो उसने हेसेस लॉ अप्लाई किया। ठीक है, उसने डायरेक्ट स्टेप और इनडायरेक्ट स्टेप वैसे ही मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसने उसकी वैल्यूज को उसी तरह से कोट किया हुआ है। ठीक, उसने वो भी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर मेरी बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, और काफी और भी मिस्टेक थी इस पेज में, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ, बट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि मिसप्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, एक आधी शायद और भी है इसमें। So we put up the values since I was talking about this, and now we're gonna put this value over here। हम यहाँ पे करेंगे तो वो of course subtract होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर हमारे पास डेल्टा R की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यूं हमारे पास इस तरह से आ जाता है माइनस माइनस प्लस वाली बात। फाइनली फॉर डेल्टा H नॉट R, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, और आपके पास वही ये फिर मिसिंग है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स थे। ठीक है, हमने इन तमाम को एड अप किया कि ये तमाम मिलकर हमारे पास एक चेंज बनाते हैं। इसमें से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को उसी तरह लेना है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा HR के बारे में याद रखिएगा, we told you beforehand when we were defining enthalpy change of reaction that it can either be positive or be negative। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये it can be exothermic, it can be endothermic। Don't forget, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज थी जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो हमेशा नेगेटिव होती हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। सो आई होप यू रिमेम्बर कि हमारे पास कौन सा कैसा केस है। आई होप यू रिमेम्बर अबाउट combustion or neutralization or thermal decomposition or other different kind of reactions which for which we have specified values।
ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा इस तरह का सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, स्टूडेंट्स को स्टार्ट में ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट वंस यू गोना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दीज यू गोना फाइंड देम समवhat इजियर। ठीक है, हमारे पास बुक में आगे चल के एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की पोजीशन को समटाइम रोटेट किया होता है। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स बॉटम पे ही हो, रिएक्टेंट्स लेफ्ट टॉप पे, प्रोडक्ट्स राइट टॉप पे ही हो, इन्हें स्विच कर लेते हैं। बट whatever you do, remember that कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शंस की तरतीब उसी तरह की रहती है। और अगर आप इस पूरे को रोटेट करेंगे, लेट्स सपोज आपने इस पूरे को यूं रोटेट कर दिया है, यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पर रिएक्टेंट्स आ गए और यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गए, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास रेड एरो भी यूं घूम के यूं आ जाएगा। तो वो रेड एरो जो है, इट needs to go from elements to reactants to products to show you the two step indirect route। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है कि अगर हम इसे सिर्फ रोटेट करें, यूं रोटेट कर दें या इसे यूं रोटेट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका रेड एरो भी उसी तरह सेटल अप हो जाएगा। आई होप आई मेक सेंस व्हेन आई से, डू आई? Yes, sir. Yes, ओके, गुड, ग्रेट। सो हमारे पास सिर्फ यही नहीं, इसी तरह हम एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन के लिए उसने एक बहुत सिंपल सी डायग्राम से हमें क्लियर आउट कर दिया है। ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स में हमेशा ऑक्सीजन शामिल होगा, जो आपके पास कंपाउंड बनता है विच इज एक्चुअली योर रिएक्टेंट ओवर हियर, वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो फिर कंबस्शन प्रोडक्ट्स देगा। तो आप देखेंगे उसने चूंकि एलिमेंट्स को स्विच कर दिया, इस सारे को उसने यूं रोटेट कर दिया, एलिमेंट्स यहाँ आ गए, रिएक्टेंट्स यहाँ आ गए, प्रोडक्ट्स यहाँ आ गए। ठीक है, तो वो एरो भी आपके पास इस तरह से आ गया। डज नॉट मैटर, इट मींस द सेम थिंग। ठीक है, और इस तरह से जब इसने इसे रोटेट किया, you'd notice that he won't be using delta HR anymore. In fact, चूंकि आप types of reactions पढ़ चुके हैं, so whatever the type of reaction, you can simply use that specific symbol. अब ये delta HF हो गया, क्यों? आपके पास elements properly एक compound form कर रहे हैं, hence he used the word compound formed. उसने उसे reactant नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा ताकि वो आपको formation के बारे में बता सकता। ऑक्सीजन जैसा था वैसा ही है, वो सिर्फ आपके पास कंबशन वाले स्टेप में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। फॉर विच देयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंथैल्पी साइकिल, एनर्जी साइकिल कैलकुलेशंस करते वक्त याद रखें कि एलिमेंट अपने नॉर्मल स्टेट में जीरो रहता है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां पर कोई किसी किस्म का एंथैल्पी चेंज शो नहीं करेगा। ठीक है, वो जीरो का जीरो ही रहेगा। ये बात बार बार करने का पर्पस ये है कि आपको ये चीज समझाई जा सके कि फिर हम इस तरह से इनडायरेक्ट रूट में जा रहे हो, यू डू नॉट नीड अ वैल्यू फॉर इट। ठीक, एंड सिंस आप ऐड करते हैं वैल्यूज, तो जीरो ऐड हुआ या ना हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, आपको ये बात ज़हन में जरूर रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एनर्जी साइकिल में क्या है। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी चीज मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। दो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशंस, बट समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट दोस बेसिक्स, और जहां हम वो बेसिक्स भूलते हैं वहां फिर हम जो ना गलती भी करते हैं, वहां पर फिर हम लॉस भी बेयर करते हैं। ठीक है, याद रखिए हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को जब हम डिफाइन करते थे, ठीक है, तो फिर हम डिफाइन करते थे कि जो भी आपके पास अमाउंट्स दी हुई हैं एक स्टैकोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन में, वो प्रोडक्ट्स दें अंडर सर्टेन कंडीशन। उस केस में हम कोशिश करते थे कि पर मोल की वैल्यू जब भी लिखनी हो तो प्रोडक्ट का 1 मोल आ रहा हो, यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए जो भी फ्रैक्शन चाहिए उससे फर्क ना पड़े, ताकि हम पर मोल कोट कर सकें। अगर इक्वेशन को बैलेंस करने की बजाय 1 की बजाय बड़ा नंबर लिख दिया तो हम यहाँ इक्वेशन में पर मोल नहीं लिख सकेंगे। ये था HR। ठीक है, आगे चलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की डेफिनेशन में ही ये था कि आपके पास 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्म होगा अपनी एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का मोल चेक कर रहा होता है, तो प्रोडक्ट के मोल के ऊपर बात कर दी है। ठीक है, जब आप बात आती है कंबस्शन की, तो कंबस्शन के लिए आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जिसे कंबस्ट करना है। एक्चुअली अब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, सो कीप द डिफरेंस। कोई डेफिनेशन ऐसी है जो आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रही है, कोई डेफिनेशन ऐसी है जो आपके पास मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखकर इसे चलें कि आप इस बात में वो गलती ना करें। अगेन आगे आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा था।
ठीक है। इट डजेंट मैटर कि एसिड और अल्कली कितने हमने मोल्स यूज किए हैं, ये मैटर क्यों नहीं करता। आप जानते हैं कि हमारे पास सिंपल एसिड्स या अल्कलीज एक एच वाले हैं, तो हमारे पास वो एसिड्स भी हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो सके पर मॉलिक्यूल, या 3 हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो सके पर मॉलिक्यूल, या ऐसे अल्कलीज भी हैं जो आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल आइंस पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 3 प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या अल्कली मैटर नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो फॉर्म करने हैं वो मैटर करता है। और अगर वाटर की वैल्यू 1 होगी तो बाकी सारों की चाहे जो भी वैल्यूज हों आप यहाँ पर मोल कोट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इक्वेशंस आपको वहां पर खुद बैलेंस करनी पड़ती हैं। जब आप इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हो तो अपनी रिक्वायर्ड चीज पे वन दें। लेट मी रिपीट, न्यूट्रलाइजेशन में वाटर 1 होना चाहिए, कंबस्शन में जो रिएक्टेंट जिसने जलना है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 1 होना चाहिए। रिएक्शन में भी हम प्रोडक्ट की ही बात करते हैं, वो के डेफिनेशन में हम स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन का तस्करा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली पर मोल लिखने के लिए प्रोडक्ट की ही बात हो रही होती है, ठीक है। सो आई होप व्हेन आई रिवाइज ऑल ऑफ दीज आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाता है कि हमारे पास इसमें से किसको किस तरह से कंसिडर करना है। आर वी गुड? यस सर। Yes, sir. ओके। अब उसने कंबस्शन दे दिया और डायरेक्टली कंबस्शन की एग्जांपल पर आ गया है, बट आई सजेस्ट कि इससे पहले कि आप कंबस्शन की एग्जांपल पे आए, सिंपल फॉर्मेशन के हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेशन क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर लिए जाएं, ठीक है। Okay, I hope the rest of you are understanding that he is drawn the same way. Elements are at the bottom, reactants top left, products top right. And now, since he knows that there are a total of 3 reactants, or 3 elements, since we're talking about elements right now, as he is filling in the elements box, so he is going to come up with aluminum, iron, and oxygen. Okay, so don't forget कि हमारे पास एल्यूमिनियम आयरन ऑक्सीजन को सादा करते रहें। थैंक यू, कीप गोइंग ऑन। सो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और आयरन को हमने उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में पुट अप करना है टू बिगिन विद, अगर हम उनकी एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, हम उसे कंसिडर करेंगे एलिमेंट से गैस के लिए। एंड इट्स बेटर कि आप जहां कहीं भी इसको नोट करें, whether you're talking about reactants, whether you're talking about products, whether you're writing the elements, ठीक है, आप उसे उसी तरतीब से, मतलब with the state symbols जरूर कोड करें। You'd notice कि ये जो state symbol वाली वर्किंग है, ठीक, ये मुसलसल जो है ना वो इसी तरह से आपको हर हर जगह पर नजर आती रहेगी, ठीक है। मसलन even if you look at the book, it's not just about the book or the equations, आपको इक्वेशन में भी वो पार्ट मिलेगा, आपको इवन वो जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस बता रहे होंगे तब भी वो वही चीज देंगे, ठीक। ओ सॉरी सॉरी, माय बैड। ये
And since the equation was already balanced, so we didn't come up to that part of the question. लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है. You are going to find a lot of questions in the topical papers which would be all about balancing the equation and then moving on. ठीक है. तो ये तो बुक है, बुक के क्वेश्चंस यूजुअली आप ऑलरेडी जानते हैं कि इजी ही होते हैं, इसलिए इस तरह से. अब देखें, आप पहले आई गेस मेरी गलती की वजह से एलिमेंट्स अरेज हो गए हैं या सिर्फ मुझे एलिमेंट्स अरेज नजर आ रहे हैं? सर मैंने मिटाया. अच्छा, ओके. सो आप चाहें तो एलिमेंट सबसे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि चूंकि रिएक्शन मेंशन होता है क्वेश्चन में, तो वो एलिमेंट समटाइम्स लास्ट में लिख लेते हैं. यू कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जो आपका टाइम सेव कर सकती है विदाउट आस्किंग यू टू मेक अ मिस्टेक कैन बी डन. ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही जो स्टेप्स हैं उन्हीं को एज सच फॉलो करें. if rearranging the step numbers in order to save yourself some time, you can always do that, or save yourself some effort, or maybe save yourself some I guess the working of the brain. ठीक है. जैसा भी, क्योंकि समटाइम्स ये जो वर्किंग ऑफ द ब्रेन होती है ये स्ट्रेस लेवल भी बिल्ड अप कर रहा होता है पेपर में. सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स के जो चीज उन्हें पहले से श्योर्ड होती है वो यहाँ जिस तरह से आपको अंदाजा होगा. ये बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है बाद स्टूडेंट्स को कि वो शुरू में पूरा पेपर गो थ्रू करते हैं. दे ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन दे फाइंड द इजीएस्ट. Doesn't matter if it's question number 2 or it's question number 5 or it's the last question on the paper. They always start with the one they're most confident about. ये काम भी हम इसलिए करते हैं कि हम अपने ब्रेन लेवल को ईज अप करना चाह रहे होते हैं. ठीक है. हम अपने आप को कुछ टाइम भी देना चाह रहे होते हैं. हम अपने स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन करना चाह रहे होते हैं. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है. सर इज इट लाइक दिस? ओके, यू आर गुड इनफ. ठीक है. अगर साथ हम इसमें पार्ट बी को भी इनकलकेट करना चाहें और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को फर्दर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट्स से अगर पार्ट बी भी आपको करना हो, ठीक है, और पार्ट बी में तो हमने पूरा HR ही फाइंड आउट करना है. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ HR, हमें HF में सिर्फ 2 वैल्यूज दी हुई हैं. ऊपर हमारे पास 4 जो है टोटल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन HF में वैल्यूज हमारे पास टोटल 2 हैं. सो हाउ इज दैट गोना सर वर्क फॉर एलिमेंट्स अस? की जीरो होंगी. एलिमेंट्स की जीरो होंगी. एलिमेंट्स की 0 होंगी. By that what Saad means कि हमारे पास, and let me use a different color this time. ठीक है. यहाँ से यहाँ पर जो AL का चेंज है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो 0 होती है. यहाँ से यहाँ पर जो डायरेक्ट स्टेप है उसमें जो Fe का चेंज है उसमें भी हमें कुछ नहीं चाहिए, वो भी 0 होता है. इस वजह से साथ ये बात कर रहे हैं. तो बेसिकली आपके पास चाहिए क्या? लेट मी अनडू बोथ ऑफ दीज पार्ट्स. ये दोनों मिलके ये बनाते हैं, इसके लिए फर्स्ट वैल्यू. और आपके पास ये दोनों मिलके, ठीक है, ये बनाते हैं. ठीक. ठीक. और इसके लिए आपको सेकेंड वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू. ठीक है. दैट्स व्हाई यू ओनली नीड 2 वैल्यूज. ओके साथ, इफ यू यूज द रेस्ट ऑफ द गिवन स्पेस, ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करना, मींस डोंट एग्जैक्टली गेट मी द आंसर, मुझे एटलीस्ट इक्वेशंस बना दें. Okay, sir. Sir, so we need to find the HR which is equal to H2 plus H1. हम्म. No, actually it was H2 equals to HR plus H1. हाँ, राइट. सो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे, सो HR वुड बी इक्वल टू, करेक्टिंग योरसेल्फ, इट वुड बी H2. HR इज इक्वल टू H2 प्लस H1. और हाँ चलें, गुड, लिख लें.
Right. Now you get the point. Good. And I guess मेरे और साथ के इस तरह बात करने के बाद we all are on the same page. बाकी सब भी understand कर रहे हैं, right? Yes, sir. Sir, I have a question. Yeah, go ahead. Oxygen on the left side of the equation, there were 3, right? Right. And on the right side as well. So in the element one, won't we like do 1.5 or something like that? Or Exactly. You're right. I was so thinking we're that going to do 1. I would keep that as a question from any one of you, but since you have already pointed it out, yes, you're right with your question, as well as the hint that it's going to be 1.5 in the bottom box. आप ठीक कह रहे हैं. ठीक है. क्योंकि साथ फर्दर इक्वेशन भी अगर हम नंबर्स भी लिखें, चूंकि साथ में पहले डिस्कस कर रहा था कि नेगेटिव्स का यूज जो होता है वो समटाइम्स मैथमेटिकल मिस्टेक की तरफ ड्रॉप कर देता है स्टूडेंट को. सो आई वांट यू टू गो अहेड एंड इवन राइट द इक्वेशंस इन नंबर्स. इतना सारा हमने आपसे करा लिया है, तो लेट्स जस्ट राइट द फाइनल इक्वेशन. वो भी हम आपसे ही करा लेते हैं. जी सर. अब एक बात सहन में रखें कि we have been following up to 1 decimal point numbers rule. So कोशिश करें कि बेशक आपका आंसर 3 significant figures से ऊपर ही आ रहा होगा. Since we might be dealing with 4 or 5 figures, तो कोशिश करें हम stick करें not with a significant figure rule, instead with answer up to 1 decimal place. ठीक है? वो 4 digits में हो रहा हो, वो 5 digits में हो रहा हो, does not matter, including the 1 in decimal. साथ फाइनलाइज्ड आंसर नहीं लिखना. बेशक आप ये 2 नेगेटिव्स वाला क्लियर कर दें, लेकिन कैलकुलेट करके फाइनलाइज्ड आंसर नहीं लिखना, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट इट. माइनस माइनस प्लस वाली चीज बेशक आप क्लैरिफाई कर दें, कोई मसला नहीं. अच्छा, आई हैड एक्चुअली 2 क्वेश्चंस. ठीक है, एक तो ऑलरेडी अली क्वेश्चनर के हिंट करके उसे फाइनलाइज कर चुके हुए हैं. सो लेट मी आस्क लाइबा समथिंग. लाइबा, सो फॉर जो है ना जितना क्वेश्चन हो चुका हुआ है, आई थिंक यू कैन इजीली कम अप विद द आंसर टू दिस वन. वुड दिस बी an exothermic reaction or an endothermic reaction after you have the final answer? Exothermic. And why is that? Answer is coming in negative. And why is that? Because of the negative sign. ओके. अच्छा, या यस यू आर राइट. लेकिन जब हमें ए लेवल्स में बात करनी होती है तो हम रीजनिंग को तो कुछ इस तरह से पुट अप करते हैं. आपके पास एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि आंसर नेगेटिव में आता है. आंसर नेगेटिव में इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ H2 इज मोर एक्सोथर्मिक देन द वैल्यू ऑफ H1. बात समझ आई हम रीजनिंग कैसे करें? देखिए, साइंटिफिक रीजनिंग इवन इफ वो बेसिक मैथमेटिकल डिस्कशन ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने वो लिखना कैसे है. ठीक. और समटाइम्स जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने आप को उसके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, सही आंसर कराते हैं, लेकिन हमारे पास जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन होता है, समटाइम्स बच्चों को उसी की रीजनिंग लिखने में मसला होता है. ठीक है, क्वेश्चन. या गो अहेड. सर, जो तो आप कह रहे हैं जो Al2O3 है फॉर्मेशन, जी. वो ज्यादा एक्सोथर्मिक है निस्बतन आयरन की. हम्म. ओके, गॉट इट. जी. तो H2 मेरा कहने का मकसद ही यही था, क्योंकि हम जो H2 है
आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि H2 की वैल्यू ये पुट अप हुई है, तो वो ऑफ कोर्स Al2O3 के लिए है, ठीक है। अब नेगेटिव में दो नंबर छोटा नंबर होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकली नेगेटिव को हैंडल नहीं किया जा रहा, बल्कि नेगेटिव को एज अ साइन फॉर एक्सो और एंडोथर्मिक हैंडल किया जा रहा है, सो कीपिंग दिस नेगेटिव अपार्ट, ये एक्सोथर्मिक है, ये इट स्टिल इज अ बिगर नंबर, हेंस द फ्रेज मोर एक्सोथर्मिक। सो दिस वन इज मोर एक्सोथर्मिक, दिस वन इज लेस एक्सोथर्मिक, तो हम इस हिसाब से अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Sometimes you need to discuss the most basic of information in terms of word to justify yourself. Get the point? Yes, sir. Yes, sir. Good, good. ठीक है, तो अब ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। जाएं टॉपिकल पेपर्स के लिए, ओ सॉरी, मुझे लगा साल खत्म कर चुके हैं। ओके, जाएं टॉपिकल पेपर्स के लिए और बेशक उसे जो है फिर सॉल्व करें। रिमेंबर, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेशन कराया है, मैंने आपको कोई और टाइप, ये कंबस्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन या आगे हमारे पास काफी सारी 4-5 टाइप्स अभी हमने करनी है, ये तो सिर्फ फर्स्ट वन थी, ठीक है। तो हमने उसके हिसाब से सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। सो यू आर गोना फाइंड वेरी फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दीज, आपको हार्डली 4 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इफ यू गो थ्रू द एंटायर टॉपिकल, मे बी अ कपल ऑफ 1 or 2 गिव और टेक, ठीक है। तो उस जितने भी मिले उतने सॉल्व करने के लिए ट्राई करें, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक जो ना वैल्यूज यूज होंगी, कंबस्शन में जाके खास तौर पर आएगा, कंबस्शन में हमारे पास एथेनॉल की कंबस्शन वैल्यूज यूज होती हैं, वो जहां पर आएगा मैं आपको एक दो वैल्यूज याद करवा दूंगा, वो फिर अगर याद हो तो वो इजी रह जाता है यूज करना, बट दैट सिंस दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, विल डू इट फॉर द नेक्स्ट सिटिंग, ठीक।